بلدیاتی اداروں کی عدم بحالی پر پنجاب حکومت کے خلاف توہین عدالت کا کیس۔ چیف جسٹس پاکستان چیف سیکرٹری پنجاب پر برہم ہو گئے۔ کہا آپ کو جیل بھیج دیں گے، ساری عمر جیل میں رہیں گے۔ آپ تو سیکرٹری یونین کونسل نہیں لگ سکتے، آپ کو چیف سیکرٹری کس نے لگا دیا؟ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بلدیاتی اداروں کی عدم بحالی پر پنجاب حکومت کے خلاف توہین عدالت کے کیس کی سماعت کی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران افسر اور سابق چیف سیکرٹری جواد رفیق عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے چیف سیکرٹری پنجاب کامران افسر پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا، آپ کو جیل بھیج دیں، ساری عمر جیل میں رہیں گے، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بتائیں چیف سیکرٹری صاحب، عدالتی حکم پر 7 ماہ بعد کیوں عمل درآمد ہوا؟ آپ عدالت ایسے آئے ہیں جیسے لنچ یا ڈنر پر آئے ہوں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کو یا آپ کی جماعت کو پسند نہ ہو، پھر بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ تو سیکرٹری یونین کونسل نہیں لگ سکتے، آپ کو چیف سیکرٹری کس نے لگا دیا؟ 1 ہفتے بعد رپورٹ دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ چیف سیکرٹری کا کیا کرنا ہے۔ دیکھیں گے چیف سیکرٹری کی بقیہ سروس اور جیل بھیجنے کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ کیس کی سماعت 1 ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سیکریٹریٹ ایپکا کی زیر قیادت محکمہ بہبودہ آبادی کے ملازمین کا دھرنا جاری ہے۔ اسکیل 1 تا 9 تک کے تمام کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا جائے، ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ تنخواہوں میں 100% تک اضافہ بھی کیا جائے۔ اس وقت شاہزیب بھٹی وہاں پر موجود ہیں، ان سے جانیں گے تازہ ترین کیا اپڈیٹس ہیں۔ شاہزیب بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں سیکریٹریٹ کے باہر موجود ہوں، جبکہ ایپکا کا دھرنا جو ہے وہ دوسرے روز میں داخل ہو چکا ہے اور مظاہرین کی بڑی تعداد ابھی بھی سیکریٹریٹ کے باہر موجود ہے اور یہاں پہ سونے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ مظاہرین اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں جی کہ اب راتیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں اور دھرنا آپ ابھی بھی دیے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ اپنے ساتھ کیا کیا ساز و سامان لے کر آئے ہیں اور ٹھنڈی رات کیسے گزاریں گے؟ جی ہم اپنے ساتھ سارا ساز و سامان لے کے آئے ہوئے ہیں، کمبل وغیرہ بھی ہمارے پاس ہیں، چٹائیاں وغیرہ، رات کو سونے کا ہم نے پورا انتظامات کیا ہوا ہے۔ اگر 2 3 دن 4 دن بھی اگر گورنمنٹ ہمارا مطالبہ نہیں مانتی تو ہم ادھر ہی رہیں گے اور اپنا دھرنا جاری رکھیں گے۔ ہمارا یہ بس یہی مطالبہ ہے کہ اے ڈی بی کے 3700 ملازمین کو پرماننٹ کیا جائے۔ 2018 میں 6 نومبر کے ادھر ہی ہم نے دھرنا دیا تھا، لیکن گورنمنٹ نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے ابھی تک، تو اس لیے ہم اپنے حق کے لیے ادھر آئے ہیں۔ تو گورنمنٹ کے ہماری جو ہے کھانے پینے کے حوالے سے بتائیے کہ آپ نے یہاں پہ دھرنا تو دے دیا ہے، دوسرے اضلاع سے آئے ہیں، گھروں سے دور آئے ہیں، تو کھانا پینا جو ہے وہ کیسے اپنا کر رہے ہیں؟ کھانا پینا ہم باہر سے لے کے آ رہے ہیں، ہوٹلوں سے لے کے آ رہے ہیں، ناشتہ وغیرہ بھی ادھر سے ہی کیا۔ ہم صبح سے آئے ہوئے ہیں، دن کا بھی باہر سے، رات کا بھی باہر سے، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا سلسلہ۔ ہم نے اپنا فنڈنگ وغیرہ کی ہوئی ہے، اس لیے ہم اسی سے اپنا فنڈنگ کس نے کی آپ کی؟ ہم خود اپنے بیاہ پہ کیا، اپنی سیلری سے اکٹھے کیے، تو وہ ہم چلتے رہے گا اسی طرح سلسلہ۔ جی بالکل، یہاں پہ مظاہرین ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا یہ کہنا تھا کہ رات گزارنے کے لیے ان کے پاس کمبل بھی موجود ہیں اور کھانے پینے کے لیے آپس میں ہی جو ہے یہ پیسے ملا کر باہر سے کھانے پینے کی اشیاء لا کر یہاں پہ کھا پی رہے ہیں، جبکہ دھرنا جو ہے وہ دوسرے روز میں داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت سیکریٹریٹ چونک کو چاروں اطراف سے بند کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ شاہزیب بھٹی۔ T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں شاہینوں کا مقابلہ کینگروز سے ہے۔ لاہوریوں کے جوش کو دیکھتے ہوئے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں 40 فٹ چوڑی 20 فٹ لمبی اسکرین لگائی گئی ہے۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کی جانب سے کرکٹرز اور شوبز شخصیات سمیت مختلف شعبوں کی نمایاں شخصیات کو میچ دیکھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ مردوں اور خواتین کے لیے بیٹھنے کا الگ انتظام کیا گیا ہے۔ ہم نے اس کے انتظامات باہر سے ہی سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے سیکورٹی یعنی پولیس کی بھی خدمات لی ہیں، اور واک تھرو گیٹ جو ہے وہ مین جو انٹرس ہیں اس کے اوپر بھی لگے ہوں گے، اور جو ہمارا جو ہاکی اسٹیڈیم کا گیٹ ہے اس کے اوپر بھی لگا ہوگا، اور پراپر سیکورٹی کے ساتھ لوگ اندر آئیں گے۔ یار دوست بھی اکٹھے بیٹھ کر میچ دیکھیں گے۔ شائقین پر امید ہیں کہ گرین شرٹس سپر 12 مرحلے کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے فائنل تک رسائی حاصل کرے گی۔ جی بڑی خوشی ہو رہی ہے، پاکستان جو ہے T20 ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کل آسٹریلیا کے خلاف کھیل رہی ہے۔ ہماری پچھلی جو راؤنڈ میچز میں ٹیم کی کارکردگی ہے بہت بہتر ہے۔ اس ٹیم کو دیکھتے ہوئے تو آپ ورلڈ کی کوئی بھی ٹیم لے آئیں تو اس کو ہم جو ہے نا ہرا سکتے ہیں۔ ہم پر امید ہیں کہ پاکستان کی ٹیم بہت اچھا کھیلے گی، کیونکہ شروع سے اس ٹورنامنٹ میں ماشاءاللہ سے پرفارمنس جو ہے تمام پلیئرز کی انڈیویجول بھی اور ایز اے ٹیم بھی بہت اچھی رہی ہے۔ شائقین کرکٹ کہتے ہیں کہ گرین شرٹس نہ صرف سیمی فائنل بلکہ فائنل میں بھی کامیابی حاصل کرے گی۔ کیمرامین محمد اسد کے ہمراہ رانا اظہر نور، سٹی 42۔ شہر کے 9 زونز میں 2 کروڑ کی لاگت سے اسٹریٹ لائٹس خریدی جائیں گی۔ میئر لاہور کا بحالی کے بعد پہلا حکم نامہ جاری۔ چیف کارپوریشن آفیسر نے اسٹریٹ لائٹس ٹینڈر کے لیے اشتہار جاری کرنے کی اجازت دے دی۔
मेयर लाहौर ने रिपेयर एंड मेंटेनेंस हेड से 8% फंड्स का इस्तेमाल कर लिया। बल्दियाती एक्ट 2013 के मुताबिक बल्दियाती नुमाइंदे आखिरी 2 माह में सिर्फ 8% खर्च करने के पाबंद हैं। 9 जोन्स के बल्दियाती नुमाइंदों को 2 करोड़ की स्ट्रीट लाइट्स दी जाएंगी। फी जोन को 20 लाख की स्ट्रीट लाइट्स मिलेंगी। शालामार जोन के 300 पॉइंट्स के लिए लाइट सेट फराहम किए जाएंगे। रावी जोन को 350, समनाबाद जोन को 320, गुलबर्ग और निश्तर जोन को 340 लाइट सेट फराहम किए जाएंगे। अजीज भट्टी, वहागा और अलामा इकबाल जोन्स को 1000 लाइट सेट दिए जाएंगे। दादागंज बख्श जोन को 330 स्ट्रीट लाइट्स के सेट फराहम किए जाएंगे। चीफ ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर कयूम खान नियाजी का कहना है कि टेंडर्स के लिए इश्तिहार जारी करने की इजाजत दे दी है। पंजाब हुकूमत ने गवाला कॉलोनी की सड़क खैरा डिस्ट्रीब्यूटर्स रोड की तोसी और बहाली और समनाबाद मोड़ अंडरपास की स्कीमें CNW से लेकर LDA के सपुर्द कर दी। शहर की 3 तरक्याती स्कीमें CNW से लेकर LDA के सपुर्द कर दी गई हैं, जिनमें गवाला कॉलोनी चंद्रॉय रोड, खैरा डिस्ट्रीब्यूटरी रोड की तोसी बहाली और समनाबाद मोड़ अंडरपास जैसा अहम मंसूबा शामिल है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के हल्के में अंडरपास का मंसूबा LDA को दे दिया गया, जबकि रुकन सूबाई असम्बली चौधरी अमीन जुल्करनैन के हल्के की 2 स्कीमें LDA को दे दी गई हैं। तीनों तरक्याती स्कीमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने रोड सेक्टर से निकालकर अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर में डाल दी हैं। स्कीमों की मुंतकिली का बाकायदा मरासला भी जारी कर दिया गया है। निजी और सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए मजीद 18 लाख शहरियों को यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड फराहम करने का फैसला किया गया है। यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड की फराहमी के लिए नादरा के साथ वर्किंग शुरू कर दी गई है। निजी और सरकारी अस्पतालों में शहरियों को मुफ्त सहूलियात की फराहमी के लिए आइंदा साल यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। जराये के मुताबिक सेहत सहूलत कार्ड के तहत 5 लाख से जायद अफराद रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जबकि मजीद 18 लाख अफराद की निशानदही और तस्दीक के लिए नादरा से मदद ली जा रही है। जराये के मुताबिक मजमूई तौर पर 24 लाख अफराद को यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड की सहूलियात मिलेंगी। नादरा 18 लाख अफराद की तस्दीक शुदा फहरिस्त महकमा सेहत को भेजेगा। फहरिस्त को मद्देनजर रखते हुए तस्दीक के बाद मजीद 18 लाख अफराद को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिल सकेंगे। पंजाब हुकूमत आइंदा 3 साल में 332 अरब रुपए की रकम यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड की फराहमी पर खर्च करेगी। सेहत के बजट से 1 अरब रुपए का फंड ड्रॉप करने का फैसला मौखर कर दिया गया। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने महकमा सेहत से मजीद वजाहत तलब कर ली। गुज़श्ता रोज सिटी 42 पर महकमा सेहत की जानिब से सेहत से मुतालिक 3 मनसूबे खत्म करके दूसरे अजला की स्कीम्स मनसूबों में शामिल करने की खबर नशर हुई। ताहम ज़राए के मुताबिक स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी खजाना ने महकमा सेहत की इस तजवीज़ को रद्द करते हुए उनसे मजीद वजाहत मांग ली है कि महकमा सेहत इन स्कीम्स को क्यों ड्रॉप करना चाहता है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से अरसाल की गई समरी के मुताबिक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के ऑपरेशन थिएटर की स्कीम को ड्रॉप करने की मनसूबाबंदी थी। न्यूरो साइंसेज का 25 करोड़ 55 लाख रुपए का फंड दूसरे मनसूबों को दिए जाने की तजवीज थी। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में 40 करोड़ रुपए मालियत का लैब का मंसूबा भी ड्रॉप किया जाना था, जबकि शहर में सेंटर ऑफ डिजीज एंड कंट्रोल के कयाम के लिए 38 करोड़ रुपए का बजट भी ड्रॉप करने की सिफारिश की गई थी, जिसे काबीना कमेटी बराए खजाना ने मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत ने शहर के 4 टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात कर दिए हैं। डॉक्टर मोहम्मद तहसीन को PIC, डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती को जनरल अस्पताल, डॉक्टर ताहिर रशीद को जिनाह अस्पताल और डॉक्टर खालिद बिन असलम को MS पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज तैनात कर दिया गया। पंजाब हुकूमत को लाहौर समेत पंजाब भर के बेशतर टीचिंग अस्पतालों में अरसा दराज से खाली मेडिकल सुपरिटेंडेंट के औहदों पर तैनाती का ख्याल आ ही गया। डॉक्टर मोहम्मद तहसीन को मुस्तकिल MS PIC तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती को मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल, डॉक्टर ताहिर रशीद को MS जिना अस्पताल और डॉक्टर खालिद बिन असलम को MS पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान सोमरो को MS विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर, डॉक्टर अरशद चीमा को MS अलाइड अस्पताल फैसलाबाद, डॉक्टर शाजिया ज़ेब को MS होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी और डॉक्टर फजल रहमान को MSc गुजरांवाला DHQ टीचिंग अस्पताल तैनात किया गया है। पहली से 12वीं जमात तक कुरान मजीद पढ़ाने का निसाब जारी कर दिया गया। प्राइमरी तक के तलबा को नाज़िल कुरान, जबकि छठी जमात से 12वीं जमात तक के तलबा को तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाया जाएगा। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बोर्ड ने कुरान मजीद के निसाब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहली जमात में तजवीदी कायदा कुरान की आखिरी 4 सूरतें पढ़ाई जाएंगी। दूसरी जमात में पहला और दूसरा पारा, तीसरी जमात के लिए तीसरे पारे से 8वें पारे तक निसाब मुकर्रर किया गया है। चौथी जमात में 90 पारे से 18वें पारे तक, जबकि 5वीं के लिए 19वें पारे से 30 पारे तक निसाब मुकर्रर किया गया है। पहली से 5वीं जमात तक सिर्फ नाज़रा कुरान पढ़ाया जाएगा। छठी से 12वीं जमात तक कुरान की सूरतों को
को तर्जुमे के साथ पढ़ाना होगा। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 88 सफ़ात पर मुश्तमिल कुरानी निसाब को रवा साल से तालीमी इदारों में लागू करने के अहकामात जारी कर रखे हैं। महकमा स्कूल्स एजुकेशन का प्राइवेट स्कूलों को रेगुलेट करने का मंसूबा नाकाम हो गया। एक साल गुजर जाने के बावजूद पहले से रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई। महकमा स्कूल्स एजुकेशन में पहले से रजिस्टर्ड 23,493 प्राइवेट स्कूलों ने एक साल बाद भी अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। महकमा स्कूल्स में मैनुअल तरीके से रजिस्टर्ड स्कूलों की तादाद 52,847 थी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 2,632 नए स्कूलों के केसेस भी इल्तवा का शिकार हैं। ऑनलाइन स्कूल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में प्राइवेट स्कूलों का इंदराज न होने से हुकूमत के पास दुरुस्त डेटा ही दस्तियाब नहीं है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने तमाम प्राइवेट स्कूलों पर यह शर्त आयद कर रखी है कि वो हुकूमत के वज़ा करदा ऑनलाइन सिस्टम में अपने कवायफ जमा करा के रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से करोड़ों मालियत के ट्रांसफार्मर गायब हो गए। कंपनी ने मामले की तहकीकात का फैसला कर लिया है। गायब होने वाले ट्रांसफार्मर्स की मालियत 7 करोड़ से ज़ायद है। लेस्को में करोड़ों रुपए के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर गायब होने का स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। गायब होने वाले ट्रांसफार्मर्स की वजह से लेस्को को 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के मुख्तलिफ दफातर से 7 करोड़ रुपए के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का रिकॉर्ड नहीं मिल सका। कवानीन के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उतरने वाले ट्रांसफार्मर्स को स्टोर्स में जमा नहीं करवाया गया। जराए ने मजीद बताया कि दफातर में मुतल्लिका लाइन सुपरिटेंडेंट्स ने ट्रांसफार्मर्स गायब कर दिए हैं। करोड़ों रुपए के ट्रांसफार्मर्स गायब होने पर लेस्को ने तहकीकात का फैसला किया है। कंपनी ने तहकीकात के दौरान तमाम दफातर से रिकॉर्ड जमा करने का फैसला किया है। रिकॉर्ड न मिलने की सूरत में मुतल्लिका फीडर इंचार्ज के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस ने मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। अकरबा परवरी की मिसाल कायम करते हुए जाती दोस्त पर नवाजिशें। ग्रेड 17 के अफसर अब्दुल इस्लाम आरिफ को अमली तौर पर ग्रेड 19 की सीट पर तैनात कर रखा है। सूबाई महकमों के एहतसाब के लिए कायम महकमा एंटी करप्शन का एहतसाब कौन करेगा? डायरेक्टर जनरल गौहर नफीस ने अपनों को नवाजने में कोई कसर न छोड़ी। ग्रेड 17 के अफसर अब्दुल सलाम आरिफ को 2 साल से ग्रेड 19 की डायरेक्टर विजिलेंस की सीट पर बिठा रखा है। अब्दुल इस्लाम आरिफ ग्रेड 18 में तरक्की के लिए फाइनल पासिंग आउट इम्तिहान में फेल हो गए थे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एंटी करप्शन के सारे इख्तियारात तो उनके करीबी दोस्त के पास हैं और इसी बुनियाद पर वो डायरेक्टर विजिलेंस के ओहदे पर विराजमान हैं। एंटी करप्शन में डायरेक्टर जनरल के बाद अब्दुल इस्लाम आरिफ को सबसे ताकतवर अफसर समझा जाता है। साबिक सीनियर स्पेशल जज ने एक केस में अब्दुल इस्लाम आरिफ के खिलाफ सख्त रिमार्क्स दिए। डीजी एंटी करप्शन ने अपने पसंदीदा अफसर को रुखसत पर भेजकर उस वक्त तक मंजर आम से गायब रखा जब तक फाजिल जज रिटायर्ड न हो गए। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस हाई प्रोफाइल इंक्वायरियों के लिए बनाई गई ज्यादातर टीमों का सरबराह भी अपने दोस्त अब्दुल इस्लाम आरिफ को बनाते हैं। एंटी करप्शन की तमाम रीजनल डायरेक्टर्स की असामियों पर भी जूनियर अफसरान तैनात हैं। तर्जुमान और डीजी एंटी करप्शन ने राब्ता के बावजूद खिलाफ मेरिट तैनातियों पर मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। सिफारशी तैनातियों के सबब एंटी करप्शन की कारकर्दगी महज छोटे मुलाजमीन की पकड़ धकड़ तक महदूद है। ताकतवर माफियाज के सताए साइलिन को रिलीफ मिलना महज ख्वाब बनकर रह गया है। रिजवान नकवी, सिटी 42। और अभी आपको बताएं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की अदम दिलचस्पी। जिना अस्पताल मुर्दा खाने में मैयतें रखने की गुंजाइश खत्म हो गई। मैयतें पुरानी होने की वजह से बदबू और ताफुन उठना शुरू हो चुका है। मुर्दा खाना ज़राए के मुताबिक 15 में से 12 मैयतें नामालूम अफराद की हैं। जना अस्पताल मुर्दा खाने में सबसे ज्यादा मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन डिवीजन की जानिब से रखवाई गई मैयतें मौजूद हैं। मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन डिवीजन की जानिब से 6 मैयतें मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर सदर इन्वेस्टिगेशन डिवीजन की रखी गई मैयतें हैं। सदर इन्वेस्टिगेशन डिवीजन की जानिब से 6 मैयतें रखवाई गईं। इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन डिवीजन की जानिब से रखी गई 1 मैयत मौजूद है। मैयतों में 12 नामालूम अफराद की हैं। थाना काहना की जानिब से 5 मैयतें रखवाई गई हैं, 4 नामालूम हैं। कोट लखपत थाने की जानिब से 3 मैयतें जमा करवाई गईं, 1 नामालूम है। थाना चुंग ने 2 नामालूम मैयतें जमा करवाई। नवाब टाउन, फैसल टाउन, मुस्लिम टाउन, गादे टाउन और मांगा मंडी थाने की जानिब से 1-1 मैयत मौजूद है। थाना लिटन रोड का पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने का मामला। हाईकोर्ट ने CCPO लाहौर मोहम्मद फयाज देव को तलब कर लिया। 11 नवंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का अबूरी हुक्म जारी किया गया।
जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरखास्त गुजार नसीरुल हक की दरखास्त पर अबूरी हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने हुक्म दिया है कि CCPO लाहौर आइंदा समाअत पर अदालत आकर बताएं कि जस्टिस ऑफ पीस के हुक्म के बावजूद पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हरासा करने पर थाना लिटन रोड में पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा के इंदराज के लिए दरखास्त दी। मुकदमा दर्ज न होने पर जस्टिस ऑफ पीस के पास रजू किया। जस्टिस ऑफ पीस के हुक्म के बावजूद पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब और साबिक गवर्नर मखदूम सैयद अहमद महमूद की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात हुई। कहते हैं हुक्मरान हर महाज पर नाकाम हो चुके, अवाम का आइंदा फैसला पीपल्स पार्टी ही होगा। अवामी मसाइल सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी ही हल कर सकते हैं। फ्लैटीज होटल में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात में मखदूम सैयद अहमद महमूद का कहना था कि हुक्मरानों की नालायकियों के बायस अवाम परेशान हाल है। अवाम आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को वोट देगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हुकूक की बात की है। मखदूम सैयद अहमद महमूद का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ही अवामी मसाइल हल कर सकते हैं। इस मौके पर सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम, अब्दुल कादिर शाहीन, MPA शाजिया आबिद और दीगर कारकुनान भी मौजूद रहे। ताजी रहनुमाओं की परवेज़ मलिक मरहूम के घर आमद। MNA अली परवेज़ मलिक से इजहार अफसोस किया। ताजी रहनुमा गुलबर्ग में परवेज़ मलिक मरहूम के घर आए। शुरका ने परवेज़ मलिक के इंतकाल पर MNA अली परवेज़ मलिक से इजहार अफसोस किया। ताजिर बरादरी ने परवेज़ मलिक मरहूम के दराजात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी की। इस मौके पर अतीकुर रहमान, आगा जुल्फ़िकार खान, आमिर सुहेल, शाहिद नज़ीर, मियाँ उस्मान, एजाज हफीज़, अर्जुमंद मकसूद समेत दीगर भी मौजूद थे। ज़िले इंतज़ामिया चिकन और अंडों की कीमतें सारिफीन की पहुँच में रखने के लिए मुतहरिक। DC उमर शेर चट्ठा कहते हैं दुकानदारों को नाजायज़ मुनाफा कमाने से रोका जाए। DC उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अहम इजलास हुआ। इजलास में पोल्ट्री फार्म्स एसोसिएशन, DO इंडस्ट्री, चौधरी अजहर गुज्जर, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, शहजाद चीमा और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। इजलास में ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन के साथ ब्रायलर की कीमतों में इस्तेहकाम और कमी बारे तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने कहा कि किसी को भी ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों के हवाले से नाजायज़ मुनाफा कमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आइंदा पोल्ट्री ट्रेडर्स को मदऊ किया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कीमतों का तयन होगा। DIG ऑपरेशन एहसन यूनुस का लाहौर हाईकोर्ट बार में कायम खिदमत मरकज़ का दौरा। खिदमत मरकज़ को जल्द फंक्शन करने का ऐलान। वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, गुमशुदगी रिपोर्ट, तजदीद ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार समेत बार दीगर ओहदेदारान के DIG ऑपरेशन का इस्तकबाल किया और उन्हें ब्रीफिंग दी। DIG ने सदर बार और दीगर बार ओहदेदारों के हमरा हाईकोर्ट बार में कायम खिदमत मरकज़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वकला को हाईकोर्ट में सर्विसेज फराहम की जाएंगी। वकला के मसाइल हल करने को हमेशा तरजीह दी है। वकला और साइलिन FIRs की मुसद्दिका नकूल, कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस समेत 15 से ज़ायद सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हाईकोर्ट बार में ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद की सहूलत दी गई है। वकला और साइलिन जल्द सर्विसेज से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इस मौके पर SSP ऑपरेशन मुस्तनसर फिरोज़ भी DIG के हमरा मौजूद थे। लाहौर की मारूफ कारोबारी शख्सियत सैयद यावर अली अक़वाम मुत्तहिदा की शराकत दारी कमेटी के मेंबर मुंतखब हो गए। सदर यावर अली कहते हैं कि वो दूसरी बार मेंबर मुंतखब हुए हैं। कमेटी UN के $5.2 बिलियन बजट की मनसूबाबंदी में अहम किरदार अदा करेगी। सैयद यावर अली ने कमेटी का मेंबर बनने के बाद सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा है कि कमेटी फैसला करती है कि बजट में कौन सा मुल्क कितनी सरमायाकारी करेगा। US 22%, चाइना 15% और जापान 10% शराकत दारी करता है। बजट में 193 ममालिक शराकत दारी करते हैं। कमेटी के 18 मेंबरान का इंतखाब दुनिया भर से किया जाता है। मज़कूरा मेंबरान में से 6 नए मेंबरान का इंतखाब हर साल किया जाता है। इसमें 18 मेंबर्स हैं हमारे और वो सारी दुनिया से हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के और बाकी सारे रीजन्स के, और हर 3 साल इसकी टर्म होती है, तो 6 मेंबर्स हर साल इसमें नए इलेक्ट होते हैं। हज़रत शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के 394वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़। दूर दराज से ज़ायरीन की मज़ार पर हाज़री, ढोल की थाप पर धमाल डालकर अकीदत का इजहार किया।
حضرت شاہ جمال رحمتullah علیہ کے عرس کے دوسرے روز بھی عقیدت مند کثیر تعداد میں حاضری کے لیے پہنچے۔ خواتین نے چراغاں کیا، زائرین نے ڈول کی تھاپ پر دمال ڈال کر عقیدت کا اظہار کیا۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کی جانب سے زائرین میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ مینیجر دربار شاہ جمال حسن رضوان کے مطابق عقیدت مندوں کو ہر ممکن سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ محکمہ اوقاف کی طرف سے جو ہے نا وہ تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے۔ محکمہ وابڈا کی طرف سے اور پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جو ہے نا وہ تمام تر سہولیات جو وہ ہمیں فراہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے ان سے لی ہیں، اور نیچے دھمال کے لیے جو ہے وہ مکمل طور پہ سیکیورٹی جو ہے وہ دکھوائی گئی ہے تاکہ کسی بھی قسم کے جو ہے نا وہ حادثے سے بچا جا سکے۔ پولیس اور انتظامیہ نے عرس تقریبات کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر رکھے ہیں۔ عرس تقریبات کے دوران زائرین اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے آ رہی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام کی درگاہوں پر مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ شاہد شپرا، سٹی 42۔ علامہ اقبال کے یوم پیدائش کی مناسبت سے چغتائی لیب ہیڈ آفس میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چغتائی پبلک لائبریری نے ینگ اقبال اسکالرز کلب کے اشتراک سے تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب میں علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت علامہ اقبال کے نواسے اقبال صلاح الدین نے کی۔ ڈاکٹر وحید الزمان طارق، خانہ فرہنگ ایران لاہور کے ڈائریکٹر جعفر روناس نے خصوصی شرکت کی۔ نوجوانوں نے کلام اقبال پیش کیا۔ اس موقع پر اقبال صلاح الدین نے کہا کہ علامہ اقبال کے افکار ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جعفر روناس نے کہا علامہ اقبال کی شاعری کے ایران پر بھی بڑے گہرے نقوش ہیں۔ ڈاکٹر وحید الزمان طارق نے کہا کہ اقبال کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ اپنا تعلق قرآن اور سنت سے جوڑا جائے، جبکہ تقریب سے قبل قاری محمد داؤد نے تلاوت قرآن مجید کی۔ شہیر احمد نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ تقریب کی نقابت کے فرائض زین حسین نے ادا کیے۔ تقریب کے اختتام پر چغتائی لیب کے سی ای او پروفیسر اختر سہیل چغتائی لائبریری کی کنسلٹنٹ ریحانہ کوثر نے طالب علموں میں انعامات تقسیم کیے۔ فیم فٹ بال کلب کے زیر اہتمام فرینڈز فٹ بال لیگ کے مقابلے جاری ہیں۔ کوالیفائنگ راؤنڈ کے میچ میں کینٹ یونائیٹڈ نے کامیابی حاصل کر کے اگلے مرحلے کی جگہ بنا لی۔ فیم فٹ بال گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن میں کھیلے جا رہے ہیں کوالیفائنگ راؤنڈز، اور میچ میں کینٹ یونائیٹڈ نے نیو وکٹری فٹ بال کلب کو 2 گول سے ہرایا۔ کینٹ یونائیٹڈ کی ٹیم میچ کے آغاز سے ہی مد مقابل ٹیم پر حاوی رہی۔ کھیل کے پہلے ہاف میں کینٹ یونائیٹڈ کی جانب سے محمد شاہد نے گول سکور کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلوائی۔ زبیدہ اقبال ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام بیڈمنٹن ڈبلز ٹورنامنٹ رانا عرفان، سخی سرور اور ڈی جی بیت المال مدثر ریاض ملک اور ڈی آئی جی جہاں زیب نذیر خان کی جوڑیوں نے اپنے میچز جیت لیے۔ نیشنل پارک سپورٹس جمنیزیم میں کھیلے گئے پہلے میچ میں رانا عرفان اور سخی سرور کی جوڑی نے عمران راٹھور اور عابد محمود کی جوڑی کو شکست دی۔ دوسرے میچ میں ڈی جی بیت المال مدثر ریاض ملک اور ڈی آئی جی جہاں زیب خان کی جوڑی نے ملک شہباز اور میاں طاہر کی جوڑی کو ہرایا۔ 12 ربیع الاول سے شروع ہونے والے بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا فائنل میچ جمعہ 12 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ بغیر مرچ مسالے کے دمبے کے گوشت کا دم پخت، جسے اس کی ہی چربی میں بنایا جاتا ہے، کھانے میں لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ دم پخت کیسے بنایا جاتا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دمبے کا گوشت تو آپ نے بہت سی قسموں کا کھایا ہوگا، لیکن کیا آپ نے دمبے کی چکی کی چربی میں بنا ہوا بغیر مسالوں کا دم پخت کھایا ہے؟ اگر نہیں تو چلیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اسے کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ سلاٹر ہاؤس سے گوشت آتا ہے، گوشت ادھر جب آئے کسٹمر اپنی مرضی کا، کوئی کسٹمر گردن کا گوشت بہت میٹھا ہوتا ہے دم پخت میں، کوئی مچھلی کا۔ جب یہ ہم لے کر آتے ہیں خود اپنی مرضی کا گوشت وزن کر کے کاٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہم لے کر آتے ہیں پتیلے میں جب لے کر آتے ہیں سائٹوں میں آٹا لگاتے ہیں، آٹا ادھر، اس کے بعد اندر ہم نے لگانے چکی کے ساتھ پیاز، آلو، ٹماٹر اور لہسن، ادرک گوشت رکھتے ہیں۔ یہ 2-2.5 گھنٹے میں سالم دم پخت تیار ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس کو روش بھی بولتے ہیں، جو پشاور کے لوگ ہوتا ہے۔ میں بہاول نگر سے آیا ہوں، تو کچھ دوستوں سے میں نے سنا تھا کہ یہ دم پخت ہے لاہور میں بہت مشہور چیز، اس کو کھانے کے لیے میں آیا ہوں اور میں نے یہ ٹیسٹ کیا ہے، بہت لذیذ ہے، بہت پیاری چیز ہے یہ۔
सिर्फ चर्बी और नमक में बना हुआ दम पुख्त ना सिर्फ जायके में इंतहाई लजीज है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद है। लाहौर ये बहुत शौक के साथ इसे खाना पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।